So hello students, today we are going to study class 7 social science chapter first exercise. So we have completed whole chapter. Now we are left with the question and answer, and today we will complete it. So let's start with the multiple choice question. The first question is, a person who makes map is called cartographer. 8th to 12th century CE is considered as अर्ली मेडाइवल पीरियड. इट इज़ कंसिडर्ड एज अर्ली मेडाइवल पीरियड. ये गलत है, ये सही है. अर्ली मेडाइवल पीरियड. ओके. आमिर खुसरो वाज अ पोइट इन अ 14th सेंचुरी. द वर्ड विच लिटरली मीन्स डैश इन द मेडाइवल पीरियड. राजपूत का मतलब क्या होता था? सन ऑफ अ किंग. डैश एस्टैब्लिश देयर रूल इन इंडिया इन 12th century current era, that is Turkish. Dash temple is one of the famous temple in medieval period, that is Konark. Manuscript were written by, किसने लिखा था in medieval period? medieval period में manuscript वगैरह लिखा था जैन एंड बुद्धिस्ट monk. एक सेकेंड. जैन एंड बुद्धिस्ट monks. जामा मस्जिद एंड मोती मस्जिद आर इन डैश दिल्ली. डैश रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. कौन सी बुक में कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में दिया गया है? राजतरंगिणी. डैश यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स टू लर्न अबाउट द हिस्ट्रीज. सो हिस्टोरियंस यूजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ sources to learn about past. So with this we have came to the end of this multiple choice question. Now we have to do very short answer questions. So the first question is, where is the word India derived from? The word India is derived from word Indus. रिवर इंडस के नाम से इंडिया का नाम इंडस पड़ा था. What does the word medieval stands for? So the word medieval stands or refers to the middle age of the Indian history. So medieval क्या किसके लिए stand करता है? middle age of the Indian history. So name the Arab cartographer who prepared the map of Indian subcontinent in 1154 CE. So Al-Idris. ठीक है, Al-Idris. इसको आप लिखोगे तो कैपिटल में लिखना Al-Idrisis. ठीक है, कैपिटल में लिखना आप. Al-Idrisis prepared the map of Indian continent in 1154. Name the chronicle who used the term Hindustan in his chronicle. मिनाज उल सिरहा ने कौन सा वर्ड यूज़ किया था? हिंदुस्तान. फिर क्या लिखा? नेम द ऑटोग्राफी ऑफ मुगल एम्परर बाबर. ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जब किसी ने खुद के बारे में कोई किताब लिखी है उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी. यदि कोई और लिखता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? बायोग्राफी. सो किसने लिखा? कौन सी बुक लिखी थी बाबर ने? तजुक-ए-बाबरी. ठीक है. फिर इसके बाद क्या है? सेकेंड क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. ठीक है. सो the first question is, where were the manuscripts written in the early medieval period? In early medieval period of Indian history, manuscripts were written on palm leaves, bark of beech tree, and on animal skins. Paper also used to be used widely by then, and a number of paper manuscripts that exceeded text had it written on other types of surfaces. So उस ज़माने में मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह पेपर नहीं हुआ करता था, इसके कारण पत्तियों पे, पेड़ों के बार्क मतलब ब्रिच ट्री के बार्क्स पे लिखा जाता था, और काय में, और एनिमल के स्किन्स में लिखा जाता था. ठीक है. सो अगला क्वेश्चन क्या है? नेम द टू टाइप्स ऑफ हिस्ट्री सोर्सेस. सो द हिस्ट्री सोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट टाइप इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड लिटरेरी सोर्सेस. Archaeological sources include building and monuments, inscription and coin, etc., while the literary sources include religious work, commentary on classical work, accounts of foreign traveler, and also include in literary sources. These sources provide valuable information about this period. So archaeological sources होते थे और literary sources होते थे. archaeological sources में क्या क्या आते थे? monuments, building, inscription, coin. और literary sources में क्या आते थे? कोई भी foreign traveler का account या किसी का क्लासिकल वर्क वगैरह इसमें आता था. फुल लिखा है कि नेम फॉर रीजनल लैंग्वेज दैट फ्लरिश ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड. सो मेडाइवल पीरियड के टाइम कौन सी लैंग्वेजेस आई? उर्दू, हिंदी, मराठी एंड पंजाबी. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन क्या है? नेम द कंट्री विथ हुम इंडिया हैड ट्रेड लिंक इन द मेडाइवल पीरियड.
सो मेडाइवल पीरियड के टाइम इंडिया का ट्रेड किसके साथ था, किस किस कंट्री के साथ था, इंडिया और अरब कंट्रीज़ के साथ था. So what is meant by the term manuscript? The term manuscript referred to the handwritten text. These scripts are a reliable source for historians since they are mostly concerned with the economy, polity, and society. Some of the manuscripts that have remained unaltered and authentic throughout ages are Babur's autobiography, Jahangir's autobiography, and biography of Humayun written by Gulbadan Begum, Humayunama, एंड अबू फैजल्स अकबरनामा. सो लिखा क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो बुक होती हैं जिसके अपन हिस्ट्री में पहली बात तो ये हाथ से लिखी होती है और इस पर अपन आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं. मगर समय के साथ कहीं कहीं बदलाव आए थे, मगर कुछ किताबें जिनमें कोई भी बदलाव नहीं आया तब से लेके अब तक, वो कौन कौन सी है, बाबर की ऑटोबायोग्राफी, जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी और हुमायूं का बायोग्राफी. यहाँ ऑटो नहीं लिखा, इसका मतलब हुमायूं का किसी और ने लिखा था. किसने लिखा था, उसकी सिस्टर ने लिखा था जिसका नाम था गुलबदन बेगम. उसके बाद अबू फैज़ल का बायोग्राफी किसने लिखी थी, अबू फैज़ल ने. ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है आपको. फिर क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी द मेडाइवल पीरियड. सो it is important for us to study medieval period because during the medieval period many regional languages developed. In 1318, Amir Khusro noted that there were different languages in every region. Even some of the food that we eat today and the type of cloth we are wearing today first came known to our forefather during this period. This period also saw new administration policy that had great implication in a time that followed. Some religious belief and practice that we follow today were born during the medieval time. Examples are the Bhakti cult and the Islam religion. This period saw the emergence of an Indian culture similar to what we have today. सो मेडाइवल पीरियड क्यों क्यों इम्पॉर्टेंट है, पहली बात ये था कि उसने बहुत सारे अपन को रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में बताया. किसने उसमें से अपन को एक एग्जांपल किसने बताया, आमिर खुसरो ने अपन को बताया था कैसे कैसे डिफरेंट रीजन में अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करी जाती है. सेकंड, अपन को बहुत सारे हिस्ट्री में चीज़ों के बारे में बताया, जैसे कि उस टाइम खान पीन क्या था, उस समय कपड़े कैसे पहने जाते थे, अपने पूर्वजों के द्वारा कपड़े वगैरह कैसे पहने जाते थे, और उनमें से कुछ चीज़ें आज भी देखी जाती हैं. ठीक है. दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ अलग नई तरीके की पॉलिसीज़ देखी. जैसे अपन ने चंद्रगुप्त के टाइम पे देखा था किसका, अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था. तो उसके बाद में अपन को बहुत सारी चीज़ें पता लगी थी कि उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उस समय का. फिर अपन को क्या पता लगता है, और क्या पता लगता है कि अपन को पता लगता है उस समय का रिलीजन कैसा था, बिलीव क्या था, प्रैक्टिस क्या क्या होती थी, भगवानों को कैसे पूजा जाता था, क्या क्या धर्म आए, कौन सा कल्ट आया, ये सब देखते हैं अपन उस समय में. ठीक है. इसने फिर इंडिया के आखिरी पॉइंट में ये लिखा है कि इंडिया के कल्चर के बारे में बताया जो आज भी इंडिया में मौजूद है. ठीक है. सो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान हैज़ चेंज्ड ओवर द सेंचुरी. डिस्कस. So the meaning of the term Hindustan has changed over the century. For example, Minhaj Sira used the term Hindustan in his chronicle, probably to refer the present day Punjab, Haryana and land between the Ganga and Yamuna. In other words, he referred to the area under the influence of Sultanate ruler. South India was perhaps not included in his term. Babur and Amir Khusro used this term to refer to the Indian subcontinent, but their meaning was not related to the present political and national sense. The term Hindustan referred to the whole of India subcontinent in a proper sense of the term since the day of the British. They were the first to use this term to refer to the area we call India today. So मिनाजुल सिरा ने सबसे पहले हिंदुस्तान का टर्म यूज़ किया था, मगर आज के जो हिंदुस्तान है वो उस समय का हिंदुस्तान नहीं था. मिनाजुल सिरा ने जब हिंदुस्तान बोला तो वो कौन कौन सा रीजन था, मोस्टली वो रीजन था जो पंजाब और हरियाणा आज के समय का और गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया था, और यही मोस्ट एरिया था जो मुग़ल सल्तनत रूल करती थी, इसलिए उसने उस समय उसको हिंदुस्तान बोला. आज के समय से बहुत अलग था ये वाला एरिया. फिर उसके बाद बाबर और आमिर खुसरो ने यूज़ करा हिंदुस्तान टर्म, और उनका मतलब और भी अलग था इंडियन के आज के सेंस से. मगर आखिरी में कौन थे वो ब्रिटिशर्स थे जिनने हिंदुस्तान वर्ड यूज़ करा और उसको एक प्रॉपर सेंस दिया आज के हिंदुस्तान में, जिसको आप आज इंडिया कहते हो. उसका कहीं भी पास में कोई मतलब था तो वो ब्रिटिशर्स ने यूज़ करा था. सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ द मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री. साइलेंट फीचर क्या क्या है. सो the first feature is we have much more historical material to help and reconstruct our past as compared to the ancient period of Indian history. Second point है, in a political sphere the vast empire were now broken and replaced by small rulers in both northern and southern
India. Turks established their firm control over India. The Mughal built an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. This period also saw the emergence of Indian culture, which was the combination of Hindu and Muslim custom tradition. So medieval इंडिया के क्या क्या फीचर थे. सो फर्स्ट फीचर ये था कि इसने बहुत हेल्प करी अपन को पास्ट को रिक्रिएट करने के लिए, क्योंकि अपने पास बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल था. अपने पास एंशियंट के लिए इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं था जितना अपने पास मेडाइवल को पढ़ने के लिए था. सेकंड क्या था कि अब जो कंट्री थी वो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल टुकड़े में टूट के बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे रूलर बन के निकल गए थे, साउथ में भी और नॉर्थ में भी. जो टर्किश रूलर थे उनने बहुत बड़ा पावर बना लिया था, अपना कंट्रोल पूरा ऑल ओवर इंडिया बना लिया था, कि अब मुग़ल एम्पायर पूरे इंडिया में बहुत सारी जगह मौजूद था, हर जगह मुग़ल एम्पायर मौजूद था. ठीक है, तो ये फिर आखिरी में लिखा है कि इस पीरियड में हिंदू और मुस्लिम के कस्टम और ट्रेडिशन और इन दोनों का विश्वास और एक दूसरे के प्रति प्यार भी बढ़ा था इस समय. ठीक है, मगर धीरे धीरे कम भी हो गया था, मगर शुरू में बहुत एक दूसरे के ट्रेडिशन और कस्टम्स को अपन समझने लगे थे. ठीक है, सो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, स्टेट सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज विद सुटेबल एग्जाम्पल. सिग्निफिकेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स विद एग्जाम्पल आर एस फॉलो. Building and monuments built during the period throw much light on the art and architecture of the lifestyle of that period. Inscription carved on a stone pillar wall of temple gave us valuable information about the contemporary language. Coin and seal gave us vivid and detailed information about the ruler and their administration. So अपन से पूछा है कि सिग्निफिकेंस क्या था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का, उसका एग्जांपल के साथ बताओ. तो पहला है भाई, जितने भी बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स थे इनने जितने आर्ट और कल्चर और लाइफस्टाइल के बारे में बताया, किसी और चीज़ ने नहीं बताया. सेकंड में लिखा है कि पिलर, स्टोन और वॉल जो थे इनने अपन को बहुत सारे वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दिया है कि उस ज़माने की लैंग्वेजेस क्या यूज़ होती थी. थर्ड पॉइंट में ये लिखा है कि कॉइन और सील मतलब जो ठप्पा होता था उस ज़माने का, उनने भी अपन को बहुत सारा डिटेल दिया है कि उस ज़माने में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का होता था. सो द फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ये क्या है, द इन्वेंशन ऑफ पेपर ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन राइटिंग. एक्सप्लेन कि पेपर की खोज के बाद क्या क्या चेंज आए मतलब राइटिंग में, आप इसके बारे में बताओ. सो बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर मैन्युस्क्रिप्ट्स आर रिटन ऑन पाम ट्रीज, बार्क ऑफ ब्रीच ट्री और स्किन ऑफ एनिमल. विद द इन्वेंशन ऑफ पेपर manuscript begins to be written on paper. Paper became popular surface for those writing petition, chronicle, judicial record, etc. Sometimes valuable original manuscripts were copied by scribes on paper. This process changed the original text up to some extent due to error or omission, and this changes in a textual revision at different point of the time led to a drastic change over the time. If there were no invention of paper at that time, it could pose many problems to take care of original manuscript written on palm leaf and skin of animal, etc. So पेपर आने से पहले सबसे अपन लोग किस किस चीज़ में लिखते थे, पाम लीफ में लिखते थे, बार्क ऑफ ब्रीच ट्री में लिखते थे, एनिमल के स्किन पे लिखते थे. फिर जैसे जैसे पेपर आए तो मैन्युस्क्रिप्ट को भी अब पेपरों में लिखना चालू करते गए, और जैसे कि जैसे पेपर बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, लोगों ने जो भी हिस्ट्री के जो जो मटेरियल थे सब कुछ अब हिस्ट्री में पेपर्स में लिखने लगे, जैसे कि क्रॉनिकल्स, जुडिशियल रिकॉर्ड, पेटिशंस जो थे वो सब अब यहाँ पे पेपर में लिखने लगे. और साथ में क्या चालू कर दिया, अब ये चालू कर दिया कि जो पुराने मैन्युस्क्रिप्ट थे जो पेपर जो पत्तियों में लिखे रहते तब उनको पेपर में लिखना चालू करा. मगर इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई कि इस समय जब एक मैन्युस्क्रिप्ट्स को दूसरे पेपर में लिखते थे, इसके बीच में भी एरर्स होते थे कि जब वो एक आदमी लिखता था, लिखते लिखते उसका मीनिंग बदल देता था लिखते लिखते, जिसके वजह से थोड़ा सा हिस्ट्री में प्रॉब्लम आई है. मगर पेपर नहीं होता आज के समय में तो अपन उस पत्तियों को और वो एनिमल स्किन को आज तक संभाल नहीं पाते. ठीक है, सो इसके साथ सारे क्वेश्चन आंसर खत्म हुए. अब अपने पास क्या बचा है, मैच द फॉलोइंग. सो मैच द फॉलोइंग और देखते हैं. सो एक तरफ लिखा है कॉलम है, कॉलम बी से मिलाते हैं. ठीक है, तो ताजुक ए बाबरी किसने लिखी थी, बाबर ने लिखी थी. ताजुक ए बाबरी बाबर ने लिखी थी. हुमायूं नामा किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने. ठीक है, ताजमहल क्या है, मसूलियम मतलब मकबरा. अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है, मॉस्क किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने. ठीक है, अकबर नामा किसने लिखा था, अब्दुल फैजल ने. ठीक है, सो अब क्या करते हैं, लास्ट पोर्शन बचा है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट वाला है डैश वाज द 14th सेंचुरी क्रॉनिकल. सो 14th सेंचुरी का क्रॉनिकल कौन था, क्रॉनिकल मतलब हिस्टोरियन था, कौन था, गयासुद्दीन बरानी. ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट्स आर डैश टेक्स्ट. सो मैन्युस्क्रिप्ट्स आर हैंड रिटन टेक्स्ट.
In India, the medieval period starts from the 18th century. So the Rajtarangani was written by Kalhana rulers. ठीक है, कल्हाना ने लिखी थी. Dash and dash provide information about rulers and their administration. Coin and seals provide information about the rulers and their administration. So with this we have come to the end of this chapter. अपन ने सारे एक्सरसाइज को कवर कर लिया है. अब आपका काम ये है कि आपको ये वीडियो को पॉज कर करके अपने पूरी नोटबुक में ये सब कुछ नोट डाउन करना है और इसकी फ़ोटो खींच के ग्रुप में भेजना है. थैंक यू.